میں خود اس کا ویلکم کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری کے باپ کا ویلکم سواگت کرتے ہوئے امیر بصرہ لائے، اندر بٹھایا، مہمان نوازی کی، پھر سوال کیا، کہا اے آنے والے شخص ذرا یہ بتا، درود میں پڑھتا تھا اور میرے درود پڑھنے کی خبر کبھی میری بیوی کو نہیں؟ میرے بھائی اسے کیا پتا کہ اللہ کے رسول نے لکھوایا؟ کہا میرے درود پڑھنے کی خبر کبھی میری بیوی کو نہیں ہوئی، بچوں کو نہیں ہوئی، محلے والوں کو نہیں ہوئی، بلکہ میں درود تب پڑھتا تھا جب میری بیوی سو جاتی تھی، بچے سو جاتے تھے، محلے والے سو جاتے تھے، میری درود پڑھنے کی خبر کسی کو نہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو رابعہ بصری کے باپ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم، وہ تو حضور نے خواب میں آ کر بتایا۔ رابعہ بصری کے باپ امیر بصرہ خوش ہو گئے، حضور نے بتایا۔ 400 چاندی کے سکے امیر رابعہ بصری کے باپ کو دیے، 1200 چاندی کے سکے خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیے، اور اس پرچے کو لے کر کہتے ہیں لوگوں اگر قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا اے امیر بصرہ بتا میری بارگاہ میں تو کون سی نیکی لے کر آیا ہے، میں عرض کروں گا پروردگار میری کوئی بھی نیکی تیری بارگاہ میں قبول کی گئی ہو یا رد کر دی گئی ہو، لیکن یہ کاغذ بتا رہا ہے میں تیرے حبیب پر درود پڑھوں۔ امیر بصرہ درود پڑھیں تو ان کے درود پڑھنے کی خبر ایک کاغذ دے رہا ہے، حضور کا لکھوایا ہوا، ہم درود پڑھیں گے تو ہمارے درود پڑھنے کی خبر یہ علماء کرام دیں گے، پھر کوئی دے یا نہ دے وہ فرشتے ضرور دیں گے جو یہاں پر آئے۔ ایک بار اور سچے دل کے ساتھ درود پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ۔ آیت پر غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پھر نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ، علماء کے ساتھ ہو جاؤ، جو بہت زیادہ نیکی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور مفسرین لکھتے ہیں یہاں سچوں سے مراد اللہ کے ولی، اور ولی کا معنی آتا ہے دوست، ولی کا معنی دوست۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، ایک دوست کی بات ٹالتا نہیں، اور حدیث قدسی ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ جب بندہ عبادت و ریاضت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے۔ بننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آنکھ بندے کی ہوتی ہے، میرے ولی کی ہوتی ہے، اس میں پاور اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں اس میں پاور اللہ کی ہوتی ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، پاور اللہ کی ہوتی ہے، کان ولی کے ہوتے ہیں، سماعت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ولی سنتے نہیں ہیں؟ اس پر تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، ولی تو کہیں سے بھی سن سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی کان میں جو پاور ہے وہ اللہ کی ہے۔ ولی کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو دیکھنا ہے نا اس کا دیکھنا نہیں بلکہ اللہ کا دیکھنا ہے۔ اعضائے بدنی اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو پاور ہوتی ہے نا وہ اللہ رب العزت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ولیوں کے دربار میں کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے تو جاتے ہیں کہ وہ ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا قریبی دوست ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے۔ اور بھئی ولی کا ذکر کریں گے تو ملے گا کیا؟ سوال ہے کیا ملے گا؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ولی کا ذکر کرنا خود اللہ کی سنت ہے، خود اس رب کی سنت ہے جس نے کائنات بنائی، ولی کا ذکر کرنا۔ تو ہم یہاں اولیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، سنت ادا کر رہے ہیں، آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث شریف سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت والا دن ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت جماعت اولیاء سے فرمائے گا اے جماعت اولیاء تم جسے جسے پہچانتے ہو، جسے جسے جانتے ہو اسے جہنم سے نکالو اور نکال کر جنت میں داخل فرما دو۔ تو جماعت اولیاء، اب جو جماعت اولیاء سے پیار کرنے والا ہے، کوئی سرکار غریب نواز سے پیار کرتا ہے، کوئی غوث پاک سے پیار کرتا ہے، کوئی صابر پاک سے پیار کرتا ہے، کوئی وارث پاک سے پیار کرتا ہے، جو جس کا دیوانہ
जमाना है, सरकार गौसे आजम अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, गरीब नवाज अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, साबिर पाक अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, वारिस पाक अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, महबूब इलाही अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, मखदूम सिमला अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, कुतुबुल मदार अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, अली शाह कलंदर अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, आला हजरत अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, बुजुर्गान बिलग्राम अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, बुजुर्गान मारेरा अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, बुजुर्गान पीलीभीत अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, बुजुर्गान बदायूं अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसको निकाल कर जहन्नम से जन्नत में दाखिल फरमा रहा होगा। लेकिन मेरा ईमान कहता है वहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहते थे कि वलियों की बारगाह में जाने से क्या होता है, इनसे मांगने से क्या होता है, वो मुंह लटकाए खड़े होंगे। ऐसे माहौल में आला हजरत यूं कहते हुए नजर आएंगे, लोगों हमने तो दुनिया में ही कहा था आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, आजागा हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। तुम वलियों से प्यार करेंगे तो वली जो होगा ना जहन्नुम से और ऐसे जहन्नुम को निकालेगा जिसके ऊपर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। तो वली का पावर वहां भी दिखा, भाई अल्लाह खुद भी निकाल सकता था जहन्नुम से, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस माहौल में वली का पावर दिखाना चाहता है। और वली का पावर कोई मामूली पावर नहीं होता है, यकीन जानिए। आखिरी बात आपको बता दूं, वक्त भी बहुत हो रहा है और हजरत भी बैठे हुए हैं। एक वली जिनका नाम है हजरत शेख कुतुब गौरी रज़ी अल्लाह, क्या नाम है? शेख कुतुब गौरी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जब इनके इंतकाल का वक्त करीब आया ना तो इन्होंने अपने मुरीदीन से कहा, ए मेरे मुरीदों, मेरा इंतकाल जब हो जाए ना तो मेरा जनाजा लेकर घूमते रहना, और जहां रुक जाए बस वही दफन कर देना। बात समझ रहे हैं? जहां मेरा जनाजा रुक जाए वही दफन कर देना। इंतकाल का वक्त आया, हजरत शेख कुतुब गौरी अलैहि रहमा का इंतकाल हुआ। इधर आपके मुरीदीन घर गए और घर जाने के बाद कोई कपड़े बांध रहा है, कोई बिस्तर बांध रहा है, कोई खाना बांध रहा है। बीबियों ने कहा ये क्या कर रहे हो? पीर को जनाजा दफनाने के लिए जा रहे हो कि महीनों का इंतजाम करने के लिए जा रहे हो? मुरीद भी बहुत समझदार थे, उनको पता था कि मूड पता नहीं कहाँ रुके, महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। शेख कुतुब गौरी अलैहि रहमा का जब जनाजा चला तो 1 हफ्ता हो गया, यूं ही चल रहा है, लेकर घूम रहे हैं। वक्त हो जाता नमाज का, नमाज अदा कर लेते मुरीदीन, भूख लगाती खाना खा लेते, प्यास लगाती पानी पी लेते, फिर उठाकर लेकर चलते, घूमते रहते। और यकीन जानिए लोग ये घूम क्यों रहा था जनाजा, किस लिए घूम रहा था? जनाजा था, लेकिन जनाजा होकर जो है ना लोगों को वो जनाजा दीन की दावत, दीन की तबलीग कर रहे थे। जैसे जैसे लोग देखते थे महीना हो गया, साल हो गई, लेकिन चेहरे से जो है ना नूर फूट रहा है, लोग ईमान में दाखिल हो जाते थे। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, हत्ता के 12 साल गुजर गए। 12वें साल का आखिरी दिन था, आखिरी दिन जब जनाजे को रखा गया तो एक मंदिर था, वहां पर जनाजा रखा, वहां रखा। लोगों ने सोचा यहाँ नमाज अदा कर ली जाएगी और पानी का इंतजाम भी है, यहीं पर जो है ना वजू भी बनाने का इंतजाम है, वजू कर यहाँ नमाज अदा कर ली जाएगी, उसके बाद लेकर चलेंगे। मुरीदीन वहां रुके तो जहाँ मंदिर के अंदर जो एक पंडित था उसने कहा यहाँ पर जनाजा आप नहीं रख सकते, ये जो रानी है ना शाही रानी का वो मंदिर था, कहा वो देखेगी तो यहाँ से आपको भगा देगी, यहाँ आप जनाजा ना रखे। कहा बस थोड़ी देर की बात है, यहाँ पानी दिखाई दे रहा है, हम वुजू करेंगे नमाज पढ़ेंगे बाकी चले जाएंगे। कहा ठीक है जल्दी निकलना। नमाज पढ़ी, वुजू करने के बाद फिर जब जनाजा उठाया तो जनाजा ना। पहली बात तो ये समझ ले कि ये 12 साल तक ही क्यों घूमा भाई? 5 साल घूम लेता जनाजा, 1 साल घूम लेता, फिर 13 साल घूम लेता, ये 12 साल ही क्यों घूमा? तो ये आपके जो पीर साहब थे ना सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती अलैहि रहमा, इनके पास जब शेख कुतुब लाहौरी अलैहि रहमा मुरीद होने के लिए गए तो आपने शर्त रखी, मुरीद में उस वक्त बनाऊंगा 20 साल तक आपको दीन की खिदमत करना पड़ेगी। कितने साल तक? 20 साल तक। मंजूर कर लिया, ठीक है हुजूर 20 साल खिदमत करूंगा, लेकिन 8 साल में इंतकाल।
मुरीद होने के बाद 8 साल में इंतकाल हो गया, 12 साल बचे, लेकिन पीर के वादे के मुताबिक 12 साल जनाजे की शक्ल में दीन की खिदमत। लोग ईमान में दाखिल हो रहे थे तो इसलिए 12 साल तक घूमा, लेकिन जब उठाने का नंबर आया तो ना उठा सके। सारे लोग भाई भूल गए थे पीर की वसीयत क्या थी, 12 साल गुजर गए थे ना, तो भूल गए थे कि पीर ने, अचानक ध्यान आएगा, अरे पीर का इशारा है इधर ही, यही दफन होने का पीर का इशारा है, वसीयत की जहां मेरा जनाजा रोके बस वहीं दफन कर देना। लोगों ने उठाया, ना उठा सके। पंडित निकल कर आया भाई, उसने कहा भाई उठाओ, कहा हम तो जोर लगा चुके, हाथ ही लगाए। जब शाही मंदिर की जो रानी थी वो आई उठाने को, जो उसने देखा ना कि यहाँ तो सब हालात ही अलग दिखाई दे रहे हैं, उसने कहा इस चारपाई को उठा कर फेंक दो। तो लोगों ने कहा हम तो उठा चुके हैं, बस आप ही जोर लगाएं। उसके जितने सिपाही थे सारे सिपाही लग गए, लेकिन चारपाई का एक पाया ना हिला सके। पहले हाथी थे उसके पास, तो उसने जो क्या किया, जोर पूरा लगाया, लेकिन वली का पावर पता नहीं था, क्योंकि वली का जो पावर होता है असल में वो अल्लाह का पावर होता है। हाथियों को बांधा गया, और जो जंजीरें थी ना उनको, वो जंजीर आज भी कोलार एक जगह है ना कर्नाटक, वहां पर आज भी वो चीज मौजूद है। ये वाकया जो है ना कोई मनगढ़ंत वाकया नहीं है, वो सारे हालात वहां पर मौजूद हैं। जंजीरें और काफी मोटी मोटी जंजीरें बांधी गई, फिर हाथियों के पैर में और चारपाई में बांधने के बाद जब फीलवानों ने हाथी को हाँका ना, तो तारीख गवाह है कि जंजीरें टूट गई, लेकिन चारपाई का एक पाया। माहौल देखा, जो शाही मंदिर की जो रानी थी ना वो कदमों में गिरी और ईमान ले, कहा ये कोई अंदरूनी पावर दिखाई देती है। और वहीं पर देखे मूड बना तो कहाँ बना, शायर ने नहीं कहा कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। रुखा तो कहाँ रुका, सारे लोग ईमान, जितना वहां मजमा था ना सबने कलमा पढ़ा और दायरा ईमान में इस्लाम के दामन करम से बात। तो 12 साल तक देखे जनाजे की शक्ल में दीन की खिदमत की है। तो वली का जो पावर होता है ना बहुत अहम पावर होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ होने का क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया, किस लिए हुक्म दिया? कयामत वाले दिन भाई आपने देखा है दुनिया का कानून है कि कहीं अगर रास्ता खराब हो और चोरों या डाकुओं का कोई खतरा हो ना, तो जो है ना अगर पुलिस की गाड़ी जा रही हो ना तो उसके साथ साथ लोग हो लेते हैं। जब उसके साथ होते हैं ना तो जो चोर होते हैं ना पुलिस की गाड़ी के साथ साथ जो उसके पीछे वाले होते हैं ना उन पर भी हमला नहीं। इसी तरीके से अगर हम सच्चों के साथ हो जाएंगे ना तो वलियों की वजह से शैतान हमारा बाल भी बेकार, समझ रहे हैं? तो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें जो बोला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। हज़रात मोहतरम, ये थे हाफिज़ कारी हज़रत मौलाना रियाज़ साहिब ने बहुत अच्छे अंदाज में नाते रसूल भी गुनगुनाई, और आप सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाया। बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और इशारे में आपको बता रहे थे इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है और दोनों तरफ से हो तो मज़ा देता है। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभाए, कुछ आप कदम बढ़ाए कुछ हम कदम बढ़ाए। अहले मिंबर ने किसी ने नात पढ़ी, किसी ने मनक़बत पढ़ी, और नबी की लिस्ट में नबी की डायरी में अपना नाम दर्ज करा दिया हज़रात मोहतरम हज़रत हसन की सुन्नत को अदा कर कर। तो मैं भी हज़रात मोहतरम चंद शेर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मोहब्बत से कहिए या रसूलल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैं पढ़ता हूँ से कहिए या रसूलल्लाह। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का या रसूलल्लाह, सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई सुबह पैदा में बटे तागे बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया ताया नूर का,
صدقہ لینے نور کا آیا ستارہ نور کا یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا نبارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ستارہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا یا رسول اللہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا رات دن دونا تیرا نورا رات دن دونا تیرا دیدا صدقہ نور کا یا رسول اللہ رات دن دونا تیرا دیدا صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا بارہ نور کا دو پاک اللہ صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اور دو شعر پڑھنا مولانا فرمائے محبت سے کہیے سبحان اللہ نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کے یا رسول اللہ نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر بچا کر اسی لیے آنسو رکھے ہیں اپنی آنکھوں میں یا رسول اللہ بچا کر اسی لیے آنسو رکھے ہیں اپنی آنکھوں میں بچا کر اسی لیے آنسو رکھے ہیں اپنی آنکھوں میں انہیں تو بس بہاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں انہیں سر پر اٹھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر دیکھیے ہمارے
इस जलसे की लास्ट कड़ी हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मशीहुर रहमान साहिब क़िबला आएंगे और अपनी गुफ्तगू में आप सामईन की क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। देखिए हज़रात मोहतरम, अभी क़ारी रियाज़ साहिब क़िबला गुफ्तगू फरमा रहे थे और मेरे जहन में ये 4 मिसरे आ रहे थे। सलाहुद्दीन की हाजत में गाज़ी की ज़रूरत है, सलाहुद्दीन की हाजत में गाज़ी की ज़रूरत है, अमल के नूर से किरदार साझे की ज़रूरत है, अमल के नूर से किरदार साझे की ज़रूरत है। फ़कत जलसा सजाने से मसाइल हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की ज़रूरत है अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की ज़रूरत है। क्या फिर औरतों को और भी देंगी तस्कीन चूड़ियाँ, फिर औरतों को और भी देंगी तस्कीन चूड़ियाँ, पहने जो पढ़ के सूरह यासीन चूड़ियाँ, पहने जो पढ़ के सूरह यासीन चूड़ियाँ, मुख्तारे कायनात ने अपना बना लिया, मुख्तारे कायनात ने अपना बना लिया। फिर हो गई खदीजा की रंगीन चूड़ियाँ, फिर हो गई खदीजा की रंगीन चूड़ियाँ। जिस दम दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा, जिस दम दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा, कहती थी झूम झूम कर आमीन चूड़ियाँ, कहती थी झूम झूम कर आमीन चूड़ियाँ। आइए हज़रात मोहतरम, हज़रत के आने से पहले हज़रत का वेलकम नारे तकबीर के सदाओं में कर लिया जाए। आप हज़रात जोरदार नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत हाफिज़ क़ारी मशीहुर रहमान साहिब क़िबला रंगे महफिल समाअत को जवानी दे जा, पहले महफिल को मोहब्बत की निशानी दे जा, तू घटा बन के बरस आज ज़मीन दिल पर, मेरे सूखे हुए गुलजार को पानी दे जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे आज़म बमने बेसर मुसम्मा मददे क़िबले दी मददे काबा इमाम मददे। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करब बलादत शहीदी करब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुल करीम व नहनु ज़ालिक मिनश शाहिदीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हमारा पेश मुसाक़ाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों को गमगुसार, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताक़ीन, जाने आलमीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, अनीसे बेकसा, चारा साद दर्दमंदा, मालिक हफ्त व सम्मा, नाजी से हर दो जहाँ, सय्याह इला मक़ा, हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दस में झूम कर दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप हमारे लिए नए हैं, हम भी आपके लिए नए हैं, मगर इस्लाम का वो हमारा रिश्ता है कि हर भाई मोमिन भाई का है, मुसलमान है। बहरहाल मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, मगर जब हमारे कानों में हमारे हबीब भाई ने हमें बताया, हसीब भाई ने बताया, जो कि असलम के भाई हैं, असलम को आप लोग जानते हैं चलिए अच्छे, उसके घर हम आए हुए हैं। और हमारा घर कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। अभी हम रमज़ान शरीफ में भी आए थे और जहाँ जिसका आबोदना वहाँ पर जाना। अभी हम सुबह को गाड़ी से उतरे हैं और आराम करने के बाद हमारे कानों पे आवाज़ हुई कि कहीं पर महफिल पाक है। तो खैर हम वो सुन्नी हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कैसा सुना, मैं सुना नहीं क्या। और हमारे मौलाना रमज़ान साहब स्टेज पर बैठे हुए हैं और हमारे एक साहब और भी ये बैठे हुए हैं। तो मैं सुनने के घर से आया, मगर मेरा दिल भी मचल गया कि मैं भी इस हिस्से में शामिल हो जाऊं।
एक बार दुरूद पाक भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी एक किताब पढ़ना चाहता हूँ, समात फरमाना है। मैं दरूद मुस्तफा से जो ये दिल सजा रहा हूँ, मैं दरूद मुस्तफा से जो ये दिल सजा रहा हूँ, इसी जिक्र से मुसलसल, इसी जिक्र से मुसलसल उसे पास पा रहा हूँ, इसी जिक्र से मुसलसल उसे पास पा रहा हूँ। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरी रह गुजर में आकर मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरी रह गुजर में आकर मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं मदीने जा रहा हूँ, मैं मदीने जा रहा हूँ, मैं दरूद मुस्तफा से। हज़रात, मैं एक दारुल गौसिया मज़हर इस्लाम का मुदर्रिस भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। और हमारा जो मदरसा बहुत बड़ा मदरसा है, जिसमें 300 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जिसमें 100 बच्चों को हम 2 टाइम खाना देते हैं, सुबह, दोपहर को और शाम को। और उसमें हाफिज़ कुरान तक पढ़ाई होती है और हर साल 5-7 बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं। उसमें हमारे 7 स्टाफ हैं, 2 हाफिज़ कारी हैं और 5 मौलवी साहब हैं, एक बाबरची है खाना बनाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, क्योंकि हमारा जो मदरसा है गौस पाक के नाम से दारुल गौसिया मज़हर इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम बरेली शरीफ से फारिग हैं, मज़हर इस्लाम से 1988 में हम फारिग हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम पढ़े हैं पंजाब की सरजमीन में कम से कम 15 साल तक हम रहे। पंजाब में 15 साल तक हमने दीन का काम किया और पंजाब वक्फ बोर्ड से मेरी नौकरी भी थी। मगर ये जिस दारुल में हम भी पढ़ाते हैं, इसके खातिर हम नौकरी छोड़ के चले गए, क्योंकि हमें वहाँ दीन का तालीम देना था। क्योंकि दीन का हमने जो अल्लाह ताला हमें इल्म दिया किसी को देने के लिए। बहुत से लोग होते हैं बहरहाल जैसा जिसका मकसद है, मगर ये आपकी हमारी ज़रा नवाजी कि आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। और उन तमाम उलमा का मैं शुक्रगुजार हूँ जो स्टेज पे रौनक है। मैं तो सबका नाम ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहरहाल ये अल्लाह तबारक ताला ने हमें, हम सुन्नियों के लिए बहुत अच्छा मौका दिया कि हम अहले सुन्नत जमात पर हम पैदा हुए। अल्लाह इसलिए कि हमारा ताल्लुक़ बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, देवा शरीफ, कलियर शरीफ, बदायूं शरीफ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, हम किसी डरते नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे। कितने फिरके होंगे? 73 फिरके होंगे, मगर जन्नती कौन होगा? एक ही फिरका होगा जो सुन्नत पर अमल करेगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर जमात वाहिद जमात है तो हम ही हैं, जो कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद भी पढ़ते हैं, हम सलाम भी पढ़ते हैं और हम उससे मोहब्बत भी करते हैं। अल्लाहु अकबर। हमने अभी स्टेज पर कहा है साहब ने कि आप बू अली शक्ल पानीपत रहमतुल्लाह अलैह कुछ बोले। बू अली शक्ल पानीपत रहमतुल्लाह अलैह जो है बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, आप गए भी होंगे माशाल्लाह। मैं भी हाजिरी जवाब करे क्या कहते हैं पानीपत में, तो आपके एक मुरीद थे, तो आपके मुरीद आए कि हुजूर मैं मक्का मदीना जा रहा हूँ हज करने के लिए, आप हमारे दुआ फरमाएं। तो बू अली शाह अंदर पानीपत रहमतुल्लाह बेटा हज करने के लिए जा रहे हो, मगर एक मेरी नसीहत मान, एक मेरी नसीहत पर अमल करना। मुरीद ने कहा हुजूर आपकी बात हमारे शराफों पे है। तो कहा कि ऐसा बेटा, जब तुम मदीना शरीफ में पहुंचना, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अनवर पर पहुंचना, तो वहाँ पहुंचने के बाद अगर कोई कुत्ता मिले तो उसका भी तुम एहतराम करना।
कोई कुत्ता अगर मिल जाए मदीना शरीफ की गली में, उसका भी तो एहतराम करना। हुजूर आपकी बात सलाखों पर, वो मुरीद चले जाता मदीना मुनव्वरा में जब पहुंचता है, मगर इत्तेफाक भीड़ ज्यादा थी, भीड़ की वजह से मक्का मदीने की क्या कहते गलियों में एक कुत्ता बगल में बैठा हुआ था। किसी ने आदमी को धक्का दिया और कुत्ते के पैर में इसका पैर लगी, चोट लगी कुत्ते को। उसके बाद जब वो साहब उसके मुरीद मदीना मुनव्वरा से घर लौटते हैं और ये सोचते हैं कि जब हम हाजी बन के आए तो अपने उस्ताद से मिलने जाते हैं। जब उस्ताद के पास मिलने आए, देखा ये कि गोली से कंजर के पानी पत्ती के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, हाथ में पट्टी बंधी हुई है। हुजूर क्या बात है, आपके हाथ में पट्टी बंधी, क्या तकलीफ है? कि बेटा मैंने तुमको समझाया था, बेटा मैंने तुमको कहा था कि मदीने में जाना तो वहाँ के कुत्तों के थोड़ा सा हिदायत कर लेना, वहाँ के कुत्ते से भी एहतराम करना। बेटा तुम्हारा पैर जो उस कुत्ते पे नहीं, मैं कुत्ता बन करके मदीने गरीब में दरूद शरीफ पढ़ रहा था, वहाँ की जियारत कर रहा था। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्त, ये अल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे होते, दो दोस्त होते हैं, वो किस रूप में कहा जाते हैं? ये जो गरीब नवाज हमें और आपको मिला, आता है रसूल। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान आप सुन चुके हैं। और कुर्बान ये बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह अलैह, आपका बचपने का जमाना है, आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जब गरीब नवाज क्या कहते हैं, गरीब गाजा खाजा वस्तु, ये गंज शकर रहमतुल्लाह बाबा फरीद जब घर आते हैं तो कहते हैं अम्मी जान, लोग हमें अच्छे नजर से देखते हैं और हमारी तारीफ करते हैं, ये हमारे अंदर कमाल है। मगर उनकी माँ अर्ज करती है कि बेटा बाबा फरीद, ये तुम्हारी कमाल नहीं बल्कि मेरी कमाल है। माँ कैसी कमाल है जी, कि ऐसा बेटा, मैं उस वक्त तक तुमको दूध नहीं पिलाती थी जब तक मैं बावजू नहीं होती थी। अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहनें सुन रही है, आज हम अपने बच्चों को वो पिलाती, दूध पिलाती हैं तो सीरियल देखती हैं या मोबाइल खोल कर कोई गाना सुनाती है, मगर नहीं। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमें अपने बच्चों को हम दूध पिलाए तो हमारे मुंह में दोनों शरीफ की तरह होनी चाहिए। दोनों शरीफ को बरकत है। हमारे आपकी माँ जो कहते हैं आदम और हव्वा, जब आपको जन्नत में रखा गया और जब आप हव्वा अलैहिस्सलाम को हाथ लगाना चाहे तो अल्लाह ने फरमाया, अरे आदम, हव्वा को तुम हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए तुम्हारी बीबी जो है उन्हें महर अदा किया है, महर अदा नहीं किया। तो आदम अलैहिस्सलाम, या अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या महर अदा करूँ? तो नबी अल्लाह ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, 10 मरतबा तुम आखिरी नबी पर दोनों शिव पढ़ लो, यही तुम्हारा महर हो गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो हम कितना खुश नसीब हैं कि हम अल्लाह तबारक तआला हमें औलिया अल्लाह की जमात में मानने के लिए हमें पैदा फरमाया।